Praise the Lord, Bishop sir. Praise the Lord and Praise the Lord. welcome to this Zoom Family Sunday Worship. जो हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब से हैं और जो बाहर से हैं पर हमारे परिवार के सदस्य हैं, Praise whether the Lord. Bishop sir. whether whether you are the member of Amritsar Diocese or not doesn't matter, but we all belong to the family of God और परमेश्वर की यीशु मसीह का ये जो परिवार है, यीशु मसीह का शरीर है, यीशु मसीह का देह है, हम सब उसका पार्ट हैं. We are all part of the body of Jesus Christ, and we'll begin this worship service. Now we are 39 people will be joining, पर क्योंकि कुछ जो हमारे रूरल बच्चे हैं, every Sunday one of the groups presents a special number. और आज शाहपुर जाजन, this is also in the border belt, शाहपुर जाजन के बच्चे, शाहपुर जाजन you know has made headlines because of the rooftop service. और ये 15th अगस्त को भी they have planned for another rooftop Independence Day celebration in Shahpur Jajan. So it will be interesting. Don't know how it will be, but it will be interesting. तो शाहपुर जाजन के बच्चे अभी जो है गाना प्रस्तुत करेंगे हमारे लिए. मिलके प्रभु की आराधना करांगे और उसी आराधना करने ऐसी एक भजन गावांगे. यीशु मेरा मीठा पानी है जो पिए बच जाएगा. यीशु मेरा मीठा पानी है जो पिए बच जाएगा. यीशु मेरा मीठा पानी है जो पिए बच जाएगा. बहता है बहता जाएगा. चश्मा बहता बहता जाएगा. मीठा पानी है जो भी बच जाएगा. यीशु मीठा मीठा पानी है जो बच जाएगा. ये है दरिया तृप्त है करता. ये है दरिया तृप्त है करता. उजड़ा गुलशन खुशियों से भरता. उजड़ा गुलशन खुशियों से भरता. चश्मा बहता है बहता जाएगा. चश्मा बहता है बहता जाएगा. यीशु मेरा मीठा पानी है जो पिए बच जाएगा. यीशु मेरा मीठा पानी है जो पिए जीवन जल है बेकीमत है. जीवन जल है बेकीमत है. प्यास न होवे ऐसी नेमत है. प्यास न होवे ऐसी नेमत है. जिंदगी देता है
जाएगा कड़वाहट सब दूर करेगा कड़वाहट सब दूर करेगा जीवन में सरूर भरेगा जीवन में सरूर भरेगा जिंदा दरिया है जिंदा कर जाएगा जिंदा दरिया है जिंदा कर जाएगा यीशु मेरा मीठा पानी है जो पिए बच जाएगा यीशु मेरा मीठा पानी है जो पिए बच जाएगा दुखियों के सब दुख हर लेता दुखियों के सब दुख हर लेता सारे रोगों से शिफा है देता सारे रोगों से शिफा है देता शिफा देता है देता जाएगा शिफा देता है देता जाएगा यीशु मेरा मीठा पानी है जो पिए बच जाएगा यीशु मेरा मीठा पानी है जो पिए बच जाएगा यीशु मेरा मीठा पानी है जो पिए बच जाएगा यीशु मेरा मीठा पानी है जो पिए बच जाएगा Thank you, Reverend Pawan and group from Shapujajan. हमें खुशी है कि हमारे एक मिशन पार्टनर में कह सकता हूं कि रेवरेंड डॉक्टर डेविड राइकार्ड और उनकी पत्नी लेना राइकार्ड दोनों आज हमारे साथ हैं। इनका इंडिया के साथ उनकी रिश्ता बहुत गहरी है। I mean, Rina has a long history of being part of Indian history and culture, and David also has a long association with India. और दोनों जो हैं हमारे डायसिस में मनाली हॉस्पिटल में थे और she was a doctor in our hospital, Reading Willington, and Dr. David Reichardt, who is a eco-theologian, has written several books, and he helped us in the diocese to start a lot of programs on environment and seminars and programs. So we have greetings from David. We'll just show you. Namaste. आप कैसे हैं? I'm David Reichardt from Sydney. You may remember me and my wife Lena. We live and work in north of Sydney in a place called Normanhurst, and this is our church. I'd like to read to you, and it's from Romans chapter 8 and verses 26 to 39. What can we say about all this? If God is on our side, can anyone be against us? God didn't keep back his own son, but gave him for us. If God did this, won't he freely give us everything else? God says his chosen ones
are acceptable to Him. Can anyone bring charges against them? Or can anyone condemn them? No, indeed. Christ died and was raised to life, and now He is at God's right hand, speaking to Him for us. Can anyone separate us from the love of God in Christ? Can trouble, suffering and hard times, or hunger, nakedness, or danger and death? No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. There is nothing that can separate us, not even COVID-19, that can separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. So we in Australia, we pray blessings on you in India, our sisters and brothers in the diocese and beyond. And we long to visit you again, but now is not the right time. Now we must keep working, each in our own place, to help people who need help in this time of difficulty with COVID-19. God bless you, and I'd ask Lena to bring a greeting now. नमस्कार। आप सबों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह रहे। We miss you all, I have to say that. We think of you often, and we pray that you would be kept safe during this time. We know that the COVID-19 is very bad in India, and we have recently seen that here in Australia it's also increasing. So we think of you as we know that you think of us. And I just want you all to remember that we have one Father, we're one family, and Jesus is our Lord and brother. So greetings to you in Jesus' name. Thank you. That was lovely. और हम भी आपको बहुत मिस करते हैं. And I can see that your background is the motorcycle against the Himalayas. So yeah, I'm sure you are missing the motorcycle ride in India. But the day traveling, international traveling will be possible again. We'll see you. फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज ये रविवार बहुत खास है इसलिए कि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं. It is always a great feeling to be united in spirit and to be on the same screen, virtually present in the worship. आइए हम प्रार्थना के साथ इस वर्शिप को हम शुरू करते हैं. तेरे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं. We are thankful to you for your presence with each of us in our own place, in our own situation. हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज तक हमारा देखभाल किया है और हमारा विश्वास है आने वाले दिनों में भी आप हमारे साथ रहेंगे और हमारा देखभाल करेंगे. With a conviction that you are in control, that we dedicate this our Zoom virtual worship in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. हम सब मिलकर एक गाना गाएंगे. We are all going to sing a Jabur. और पास्टर पीटर हांस हमारी अगुवाई करेंगे. ये सबको आता है. रहेगा ना सदा थीकर, ये सबको आता है. और रोमन स्क्रिप्ट में इसका टाइटल दिया जाएगा स्क्रीन पे. आप सब इसमें ज्वाइन कर सकते हैं.
सबको जय मसीह की। आइए हम मिलकर खुदा की महिमा के लिए एक ज़बूर गाएं। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा याब तलक सूर, रहेगा रहेगा जब तलक सूर रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते कौमाओ दिया धन्नवाद गावन, ते कौमाओ दिया धन्नवाद गावन। जो इसराइलियां दा रब खुदा है, जो इसराइलियां दा रब खुदा है, अजाइब कम करदा तन सदा है, अजाइब कम करदा तन खुदा है। खुदा दा पाक नाम है शान वाला, खुदा दा पाक नाम है शान वाला, सदा तीकर मुबारक हो रहेगा, सदा तीकर मुबारक हो रहेगा। बुजुर्गियों दी है दुनिया ते सारी, बुजुर्गियों दी है दुनिया ते सारी, कहो आमीन आमीन फिर दूसरी बारी, कहो आमीन आमीन फिर दूसरी बारी। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। Thank you, Jesus. Thank you, Pastor Peter Hans, for leading us in singing. अभी हम प्रेयर ऑफ कन्फेशन में जाएंगे। जब हम खुदा की उपस्थिति में आते हैं तो अपने बारे में हमें महसूस होता है कि हम कैसे कि खुदा के रास्ते से इतने दूर चले गए हैं। खासकर ये जो कोविड-19 सिचुएशन में सब चाहते हैं कि ये बीमारी हट जाए, पर जब तक हम अपने पापों से नहीं हटते हैं, जो आज बुराइयां हैं जिसके लिए मैं और आप रेस्पॉन्सिबल हैं, जब तक उसके लिए हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बीमारी हट जाए। सो लेट अस कम with penitent heart to the presence of God and ask for forgiveness. Let us pray. Reverend Roshan Machi will lead us. ये समय है कि हम अपने गुनाह का इकरार करेंगे। खुदावंद खुदा, हमने खता की है और भूली हुई भेड़ों की मानद तेरी राहों से कुराहे हो चुके हैं। हमारी ज़िंदगी में बुराइयां, बुरी चाल, बुरे काम और बुरी सोच विचार है, जो नशा अलग अलग तरह से हम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को नाश कर रहे हैं। हम बुरी
भाषा बोलते हैं और बुरी आदतें हैं, और सृष्टि को हमने तैश नैश कर दिया है और जुल्म हम कर रहे हैं। हमारे दिल में एक दूसरे के प्रति गहरी ईर्ष्या रखते हैं। हम प्यार की बात करते हैं लेकिन प्यार हमारे अंदर नहीं है। हम उजाड़ू पुत्र की तरह हम बुरे राह पर चल पड़े हैं। हम हेरा फेरी, बेईमानी, चोरी, रिश्वतखोरी, बेइंसाफ़ी, तशद्दुद, अत्याचार, बुराइयां करते हैं और मन भी गंदा हो चुका है। यहाँ तलाक, लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, मार कुटाई, हम अपने माता पिता के आज्ञाकार नहीं हैं। ये सभी गलतियों को हम मानते हैं और पश्चाताप करते हैं। खुदा हम पर रहम कर और हमें पवित्र कर, तेरा लहू हमें पवित्र करे ताकि हम अपने जीवन में अच्छे दिन देख सकें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आमीन। थैंक यू रेवरेंड रोशन मर्सी। अब हम पवित्र बाइबल में से सुनेंगे। Now we'll have the reading from the Bible, John chapter 21, verses 15 to 19. Dr. Rabia, who is a doctor in our hospital in Taran, she is from Shahpur Jajan. So Dr. Rabia is जो बाइबल का पाठ है वो हमें पढ़कर सुनाएंगे। आज हम खुदा के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 21 अध्याय, उसकी 15 से लेके 19 आयत तक। यूहन्ना की अंजील, उसका 21 अध्याय, उसकी 15 से लेके 19 आयत तक। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन से कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूँ। उसने उससे कहा कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार उसने कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इससे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? पतरस उदास हुआ। उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीत रखता है? और उससे कहा है, प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना जाना चाहेगा वहाँ ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर के महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। ये खुदा का पवित्र वचन है। आमीन। आमीन। Thank you, Dr. Rabia. Today, once again, we have our dear friend, Reverend Vinod Victor from the Holy Trinity CSC Church, Trivandrum. और ऑलरेडी उनका परिचय आपके पास है। द वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ द डायसिस। बहुत सारे ओकेजन में वो डायसिस आ चुके हैं, डायसिसन काउंसिल में, यूथ फेस्टिवल में, और इवन इन जूम वर्शिप में भी। और ये मुझे सबसे अच्छा लगता है कि the whole family is involved in worshiping together, in singing together, and today once again we are going to have the family contribution. So सबसे पहले उनका एक गाना जो कि उन्होंने स्पेशली कोविड-19 के लिए प्रस्तुत किया या तैयार किया है, उसको प्रस्तुत करेंगे।
It is on the YouTube. You can even watch that on the YouTube. तो हम उस गाने को अभी प्रस्तुत करेंगे। तो उसमें पूरे परिवार जो हैं इन्वॉल्व हैं, रेवेरेंड विनोद, his wife Molly, and their daughters Gigi and Dorothy. Where is God? Pardon? No, I'm asking, where is God in all of this? His scars, oh
beautiful singing. Thank you so much. It's a musical family, and I'm sure that in future you are going to have more of your songs. अभी इस प्रभु के वचन को हमारे साथ बांटेंगे रेवेरेंड विक्टर, पर उससे विनोद विक्टर, पर उससे पहले रेवेरेंड उदय सिंह जो कि प्रेस्बिटेरियन चर्च जम्मू में हैं, रेवेरेंड उदय सिंह इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे. रेवेरेंड उदय सिंह will pray for the sermon. आइए हम सब मिलकर प्रभु के वचन के लिए प्रार्थना करें जो इस समय अभी प्रभु के दास रेवरेंड डॉक्टर विनोद विक्टर प्रभु का कलाम लेके आ रहे हैं. खुदावन प्रभु हम सबको आशीषित कीजिए अपने वचन के द्वारा. हम धन्यवाद करते प्रभु जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन वर्शिप में है. खुदावन आप सबको व्यक्तिगत तौर से आशीषित कीजिए. खुदावन इन दिनों में प्रभु विशेषकर धन्यवाद करते हैं आपके दास हमारे बिशप साहब, उनके प्रयत्नों के द्वारा हम सब लोग अलग अलग जगहों में अपने अपने घरों में आए खुदावन ऑनलाइन वर्शिप करने का मौका मिला. खुदावन हम धन्यवाद करते प्रभु. हम प्रार्थना करते खुदावन इस समय आप अपने दास के साथ हैं और आपका पवित्र आत्मा अभिषेक करें खुदावन, और आपके वचन के द्वारा हम सब लोग आशीषित हों. ऐ खुदावन सारी आदर महिमा आपको देते हैं खुदावन. धन्यवाद करते प्रभु जो वचन तू हमें देने जा रहा है. खुदावन हमारे मनों को तैयार कीजिए, हमारे सोच विचारों को पाक कीजिए खुदावन, ताकि हम तेरे वचन को सुनने के लिए तत्पर हो. खुदावन आए पवित्र आत्मा हम सब के अंदर एक शुद्ध मन, पवित्र मन तैयार कीजिए खुदावन, ताकि हम तेरे वचन के लिए तैयार हो सके. सारी आदर महिमा आपको देते हुए आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. आमीन. थैंक यू रेवेरेंड उदय सिंह. अभी मैं आमंत्रित करूंगा रेवेरेंड विनोद विक्टर जो कि होली ट्रिनिटी सीएसए चर्च के प्रेस्बिटेरियन इंचार्ज हैं और एशिया सीएमएस के चेयरमैन भी हैं और डायसिस ऑफ अमृतसर के फ्रेंड हैं. सो रेवेरेंड विनोद विक्टर, it's time for you now, and Reverend Vijay Kumar will translate in Hindi. Thank you, Bishop. Greetings in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, and we deem it a privilege to be able to come again to the Diocese of Amritsar, though online, and greet you and bring this word of God this morning. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस मौके के लिए जो मुझे मिला कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सकूं, और खास करके डायसिस ऑफ अमृतसर के लिए उसके साथ मिलकर आज ऑनलाइन इबादत में शामिल होने के लिए जो हमें मौका मिला उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं. I thank the Bishop for this opportunity and also thank him not just for the leadership he is giving to the Diocese of Amritsar, but the world over, especially with the CMS in Asia. Thank you very much, Bishop, for your leadership. और मैं बिशप साहब का धन्यवाद देता हूं जो उनकी अगुवाई के लिए न कि सिर्फ भारत में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में परंतु एशिया सीएमएस में भी जो उनकी लीडरशिप है उसके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं. I would draw your attention this morning to the gospel lesson that was read to us from John chapter 21. और मैं आपका ध्यान यूहन्ना की अंजील जो 21 अध्याय 15 से 19 तक वचन हमारे बीच में पढ़ा गया उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ. The context is known to all of us. Peter. Continue वचन. Peter is there by the seaside in a very difficult situation. और हम सब संदर्भ को जानते हैं कि जो पतरस था वो शोर पर था और एक बड़े ही मुश्किल हालातों में था. He had a lot of expectations following Jesus, but the cross experience shattered all those. और उनके मन में बहुत सारी उम्मीदें थी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की थी, परंतु जो क्रूस का जो तजर्बा था उसने सब कुछ हिला दिया. And after the cross experience, like many of us,
they were in fear in lockdown situations in closed doors. और जब सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद चेले कुछ इस प्रकार के हालातों में थे, अपने आप को बंद कर रखा था, जिससे हम आज लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से अपने अपने घरों में बंद हैं। But Jesus crossed over those locked doors, came near them, showed him his scars and his wounds, and gave them peace and comfort. परंतु यीशु मसीह उन बंद दरवाजों में से भी अंदर आया और उसने अपने निशान उन्हें दिखाए, अपने जो उनको जख्म हुए थे वो उन्हें दिखाए, और उसके बाद परमेश्वर के पुत्र यीशु ने उन्हें शांति दी। You cannot be in lockdown situations for long. You have to find a way to live. So they decided that they are going to go fishing. और इसलिए कि वो अपने आप को उन बंद दरवाजों में नहीं रखना चाहते थे, उन हालातों में से वो बाहर आना चाहते थे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम मछली पकड़ने जाएंगे। But there again, the whole night they tried, but they did not catch anything. Jesus came, told them to cast the net on the right side, and there was this miraculous catch. और कुछ इस प्रकार से हुआ कि वो पूरी रात मछली पकड़ते रहे, परंतु एक भी मछली उनके हाथ में आई, और चमत्कारी रूप से यीशु उनके पास आया और उसने कहा कि तुम अपना जाल दूसरी तरफ डालो, और जब उन्होंने दूसरी तरफ जाल डाला तो बहुत सारी मछलियां उन्हें पकड़ने को मिली। And then they had a meal together, and we come to John chapter 21, verse 15 to 19, which is the text that we will study today. और फिर उसके बाद उन्होंने सबने एक साथ मिलकर भोजन किया, और जिस अध्याय के ऊपर हम पहुंचते हैं, यूहन्ना की अंजील के ऊपर 21 उसकी 15 से 19, जिसके ऊपर आज हम ध्यान देने के लिए जा रहे हैं। I would like to draw your attention to 4 things. 1 is fresh Jesus encounters during this time. 2, fresh conversations about love and commitment. 3, fresh understanding of our own mission in a context like this. And 4, a fresh calling to follow Jesus in difficult situations. और इन हालातों में मैं आपका ध्यान 4 बातों की ओर लेके जाना चाहता हूँ। पहली बात कि एक और नए तरीके से यीशु का साथ आमना सामना करना, और दूसरा कि हम अपने प्रभु के साथ एक और प्रतिबद्धता में आए, प्रेम में आए और उस भाषा में आए, और तीसरी बात जो मैं अपने ही जो हमारी समझ है, हमारा जो मिशन, हमारा कार्य, उसकी और चौथी कि उस बुलाहट को जिसके पीछे चलकर हम यीशु के पीछे चलते हैं। The love that we have for Jesus is something that we normally don't understand. I'll tell you a story. और जो प्रेम है जो हम ज्यादातर नहीं समझ पाते हैं जो यीशु के साथ है, इसको एक कहानी के रूप में मैं बताना चाहता हूँ। There was this young boy who wanted to give a birthday gift to his mother. और एक नौजवान बच्चा था जो अपनी माँ को एक उपहार देना चाहता था। And on that birthday, he came with a huge box that was beautifully covered and wrapped and with a good ribbon around it. और वो एक बहुत ही खूबसूरत बॉक्स को लेके आया जिसके इर्द गिर्द रिबन, लाल रंग का रिबन बांधा हुआ था और बहुत बड़ा था वो। The mother opened this box with great excitement, but to her utter surprise saw that it was an empty box. और माँ ने बड़े ही अचंभित होकर उस बक्से को खोला, परंतु जब उस डिब्बे को खोलती है और देखती है कि ये तो खाली है। The mother was so angry and she whacked the boy here and there and quarreled with him and scolded him and said, never do this, never give empty boxes as gifts to anybody. और उसकी माँ ने उस बच्चे के ऊपर गुस्सा करते हुए कहा, उसको मारा भी, बहुत जोर से बोली भी, और उसने कहा कि कभी भी किसी को खाली डिब्बा उपहार में नहीं देना है। The boy cried for some time. और वो बच्चा थोड़ी देर के लिए रोया। And then told his mother, "Mother, this box is not empty." और उसने अपनी माँ को कहा कि माँ ये जो बक्सा है, वो जो डिब्बा है, वो खाली नहीं है। I have filled it with 1,000 kisses. और इसमें मैंने हजारों जो किस इसमें डाली हुई हैं। Each time I take a kiss, I put it in the box. So all my love in 1,000 kisses, I put it in the box and gave it to you. और मैंने बहुत सारी हजारों किसेस इसमें डालकर मैंने ये तो आपको दिया है ताकि आप इसको महसूस कर सकें। The mother was sad because she couldn't realize so much of love that went behind the whole box. और उसकी माँ ने इस प्रेम को नहीं समझ पाई जो कि उसमें इस डिब्बे में था। So this conversation is all about love. और ये जो बातचीत है ये पूरी प्रेम के बारे में हमें दर्शाती है। I would draw your attention
to the fresh conversations about love that was going on there. और मैं जो ताजी जो बातचीत में आपकी और जो प्रेम के बारे में उसकी और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ. There are 3 questions that Jesus asks. और यीशु ने 3 सवाल पूछे. And all 3 are different questions, not the same. और ये तीनों सवाल बिल्कुल विभिन्न है, एक जैसे नहीं थे. And I will draw your attention to the differences in the 3 questions. और मैं जो इन तीनों सवालों में भिन्नता थी उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ. The first question is this: Simon Peter, son of John, do you love me? The word that used is agapas, agape, more than this. और जो पहला सवाल यीशु ने पतरस से पूछा कि पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है, और जो प्रेम यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है शब्द वो अगापे शब्द इस्तेमाल किया गया है. And that is heavenly love, love that has no limits, no boundaries, love that is totally divine. और ये एक अलौकिक प्रेम है, ये संसारिक प्रेम नहीं है, ये एक पवित्र प्रेम है. And Peter's answer is this: Yes, Lord, you know that I love you. And the word he uses for love is a very different word. It is phileo, a love with a lot of limitations. और जो पतरस ने जो शब्द इस्तेमाल किया, उसने पतरस ने इस प्रकार से जवाब दिया कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ. और जो प्रेम का जो शब्द उसने यहाँ पर इस्तेमाल किया वो फिलिए है, और जो बिल्कुल भिन्न है. The second question does not have the second part of the first question. The question is this: He said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? The word agape is still used, but the second part, more than all this, is not there. More than everybody else is not there. और दूसरी बात जो यीशु ने जो यहाँ पर सवाल पूछा, जो पहले से बढ़कर नहीं था, परंतु उसने ये पूछा, फिर से वो सवाल पूछा कि पतरस क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? And the answer is the same answer is repeated. Yes, Lord, you know that I love you. Philia, the love with all limitations, human love with all limitations. और फिर से पतरस ने वही उत्तर दिया कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ. और ये जो यहाँ पर प्रीति इस्तेमाल किया वो मनुष्य के अनुसार है, जिसकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं. And the beauty of this passage is that the third time that Jesus just note the word he uses for love. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? The word Jesus uses now is phileo, love with all those limitations. और फिर तीसरी बार जो यीशु ने फिर से उससे सवाल पूछा, और वो सवाल में पतरस से पूछता है कि हे शमौन पतरस, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और यहाँ पर यीशु ने प्रीति शब्द इस्तेमाल किया है, जो कि इंसानी रूप से है. And you see, the expectations of Jesus comes down each step to meet what is possible with you and me. और यीशु की जो अपेक्षा है वो हम इंसानों के लिए वो नीचे आता रहता है ताकि हम उसको समझ पाएं. So when we go through difficult situations, we look at our love for God. और जब हम कठिन परिस्थितियों में से निकल के जाते हैं, तब हम अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति देखते हैं. And we are reminded that Jesus loves us still the same and expects from us what we can in this particular context. और हम इस बात को याद करते हैं कि किस प्रकार से यीशु हमसे प्रेम करता है और उसकी हमसे क्या अपेक्षा है. So this difficult situations of lockdown, we should use as an opportunity of fresh conversation with Jesus about our love and commitment to him. और इस लॉकडाउन में हम इस मौके का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और यीशु के साथ फिर से वार्तालाप में आएं और उसके प्रेम को हम अपनी जिंदगी में जानें. The second thing is there are 3 things that Jesus says after each statement, and all these things are 3 different things. The first, after the question, what he says is, "Feed my lambs, my little lambs." और हर एक प्रश्न के बाद यीशु एक स्टेटमेंट, एक बात कहता है, और वो पहली बात ये कहता है कि मेरे मेमने को चरा. Now, why do you want somebody else to take care of little lambs? Now, I'll give you a few examples why a little lamb needs care. Now, a rejected lamb. When does a lamb become a rejected lamb? I've just noted 5 things there. One is sometimes the mother lamb
does not have any maternal instinct, does not care for the lamb. Sometimes it gives birth in a very scary situation, a difficult pregnancy. It does not take care of the child. Sometimes the ewe is too young to take care of the child. Sometimes a foreign touch or a foreign presence, but sometimes the mother dies, so mother is not there. A rejected lamb is there, which has to be cared by somebody else, fed by somebody else. That's where the care is needed. और हम यहाँ पर देखते हैं कि हम क्यों कोई किसी को कहें कि छोटों की तुम देखभाल करो, उसमें कुछ 5 परिस्थितियां जिसके बारे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक छोड़े गए जो मेमने के बारे में कि जिसकी माँ उसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रही है, या एक ऐसे डर के माहौल में वो है, या फिर जो बच्चा जन्म करते वक्त कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई थी कि वो अपने बच्चे को देख नहीं पा रही, या फिर उसके बाद कि वो जो माँ है वो बहुत ही छोटी है और वो अपने बच्चे की देखरेख नहीं कर पाती, या फिर 5वीं बात जो यहाँ पर कही गई है कि एक अजनबी माहौल में, कि जहाँ पर एक अजनबी माहौल है जहाँ पर इस जो छोटे लैम की, जो छोटे मेमने की जो देखभाल की जरूरत पड़ती है. So what happens then is somebody else will have to take care of the child, little lamb. It has to give colostrum, the mother's milk. और यहाँ पर हम देखते हैं कि qualities of immunity of the sheep is kept carefully. Yes, somebody else will have to ensure that the sheep is kept warm. Somebody else has to ensure that the sheep is protected from illness, from predators, and also, if possible, coax another ewe to take care of the sheep. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई और उस बच्चे की देखरेख करे, उसको अच्छे से दूध दे और उसको अच्छे से गर्म रखे और उसे हर एक बीमारी से बचाए और उसको खास करके जो बाहरी अटैक से, बाहरी प्रभाव से भी उसकी मदद करें. So what does it mean to you and me today? I want to tell you, lockdown has affected our children the most. We have to take care of it. Yeah. और आज इस संदर्भ में हमें क्या करने की जरूरत है इस लॉकडाउन में, और इसमें हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा है. They are not able to go to church. They are not able to go to school. It has had a very strong mental, emotional, and intellectual crisis on our children. और हमारे बच्चों के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ना तो वो स्कूल जा रहे हैं और ना ही वो चर्च जा पा रहे हैं, और उनको जो मानसिक रूप से, इमोशनली जो उनको बहुत ज्यादा इसका असर उनके ऊपर पड़ा है. And feed my little lambs is a reminder to you and me, for all of us, to take care of children, very specially rejected children, children who do not have anybody else to care for them. As a church, are we able to truly care for our children in difficult contexts and suffering contexts? That's a very important question we take home today. और आज हमें ये बात याद दिलाती है कि मेरे मेमने को चरा, हमें उनकी एज अ चर्च, हम कलीसिया होने के रूप में हमें अपने उन बच्चों की देखभाल करने की जरूरत है जो छोड़ दिए गए हैं, जिनका कोई भी सहारा नहीं है. और इस संदर्भ में, इस माहौल में हम किस प्रकार से अपने उन बच्चों की, खास करके जो छोड़ दिए गए हैं, उनकी किस प्रकार से हम देखभाल करें. Our ministry to those children in their emotional crisis, mental crisis, spiritual crisis, and survival crisis is a challenge that you and I should take on. और इस संदर्भ में जो हमारे बच्चों की जो मानसिक रूप से और जो उनके क्राइसिस में है, वो कठिन परिस्थितियों में हैं, आत्मिक रूप से, या उनके रहन सहन में, ये बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें हमारी सेवकाई उन बच्चों के प्रति हमें कुछ सिखाती है. The second thing that Christ tells Peter is this: tend my sheep, take care of my sheep. और दूसरी बात जो पतरस से यीशु कहता है कि मेरे भेड़ों की रखवाली कर. Now, what do you mean by tending the sheep? In the Bible, it talks about strengthening the weak, oiling the sick, ensuring safety and sustenance of the sheep that are elderly, sheep that cannot travel, protecting the sheep that are in the pen from predators, binding up the broken, and being with the anxious sheep. और ये हमें बताती हैं कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर, इसका ये मतलब है, हमें ये दर्शाता है कि जो कमजोर हैं उनके साथ हम उनको ताकत दें, जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें, और जो
एक ऐसी परिस्थितियों में हैं कि हम उनके सहारा बने, उनके साथ रहें, और जो टूट चुके हैं हम उनको फिर से जोड़ें, और जो घबराए हुए हैं उनके साथ हम रहें। And as a church, this is one of our biggest responsibility today, to tend the sheep, because this disease has made several people weak, several people broken, several people anxious, and they need us, our presence and our ministry among them. और इस संदर्भ में जो कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को जो प्रभावित किया है, तो कलीसिया होने के नाते हमें जो कमजोर हैं उनके साथ रहना है, जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है, जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं या टूटे हुए हैं या बेसहारा हैं, इस वक्त उन्हें हमारे कलीसिया के सहारे की जरूरत है। We should also ensure that our ministry to the homebound people, the elderly people who are at home, the spiritual vacuum, what can the church do? The loneliness of several people across the world, what can the church do? The anxiety and inner wounds that we do not see in the lives of several people, traveling homes, losing their jobs, the economic crisis, the young people, who have no focus, nowhere to go, the economically broken families. And we are reminded today, we as a church has to be the channels of God's tender love and watchful care in tending the sheep of Christ. और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो खास करके बुजुर्ग जो अपने घरों में बंद हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के जख्म हम अपने नहीं देख पा रहे हैं जो बहुत ही इस वक्त परेशान हैं, और खास करके हमारे नौजवान जो भटक रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं कहाँ जाना है, और बहुत सारे लोगों की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं इतनी खराब हो चुकी हैं, वो टूट चुके हैं। और हमें एक चर्च होने के नाते, कलीसिया होने के नाते, हमारी जो सेवकाई कि हम किस प्रकार से अपनी भेड़ों की रखवाली करें, ये हमें आज बात दर्शाती है। And lastly, he says, feed my sheep. And feeding the sheep is traveling with the sheep. A journey into lush green mountains, flowing rivers, inhabited cities, into calm waters, greener pastures. It is being with the traveling sheep, being the door for the sheep to protect them from predators in the journey. And we have heard quite a lot about shepherding of people who are traveling. There are several people around us who needs this pastoral presence. It's not just the pastor, the pastoral presence of the church as their journey in life. और उसके बाद तीसरी बात जो यीशु पतरस से कहता है कि मेरी भेड़ों को चरा, और हम इस वक्त में हमें कलीसिया के रूप में हमें देखना है कि हम अपनी भेड़ों के साथ चलें और उनको एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे वातावरण में लेके जाएं जहां पर हरियाली है, जहां पर पानी बह रहा है, झरने हैं, और जहां पर जिंदगी, और उनकी इस प्रकार से अगुवाई करें कि वो बहते झरनों के पास हम उन्हें लेके जाएं, और जो उनकी चुनौतियां हैं हम उन चुनौतियों में उनके साथ रहें, उनके लिए एक दरवाजा बने ताकि हम उनकी सुरक्षा कर सकें उस तमाम बाहरी जो अटैक से, और उनके सफर में उनकी सहायता करें। इस वक्त मेरे प्रियो, उन भेड़ों को चरवाहे की जरूरत है, एक पास्टर केयर की, उनकी सहायता की हम जरूरत है, हम उनकी कर पाएं। There are several people on the roads even today. And the call of the church is synhodos, which means together on the road with several people suffering today. The church has to be present in the lives of the crisis of the people, as Jesus was present in the crisis moment of Peter. और आज भी लोग जो रास्ते पर हैं, और इस वक्त इस संदर्भ में जो कलीसिया की बुलाहट है, कलीसिया को इसलिए बुलाया गया है कि उनके साथ उस सफर में उनके संग चलें, और जैसा यीशु हर एक के साथ उनके सफर में चलता है, उसी प्रकार मेरे प्रियो कलीसिया भी इस वक्त ऐसे लोगों का सहारा बने जो सड़क पर हैं, जो बेसहारा हैं, ताकि उनका सहारा बन सके। And in closing, I would say it is a fresh call to follow Jesus, out from lockdown experiences into the frontiers of ministry, from empty experience into the richness of harvest. He goes on. The one who heard the echoes of the crow is the one who goes on and says, silver and gold have I none, such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. He's the one who goes on for the Pentecostal experience, one who goes on to break barriers and goes down to several people, including Cornelius. So it's a fresh call saying, in every crisis, Jesus says, follow me afresh. और यीशु आज फिर से हमें एक ताजी बुलाहट दे रहा है और नए तरीके से हमें बुला रहा है, और वो बुला रहा है कि आइए हम
अपनी सेवकाई में आगे बढ़ें और एक नया तजर्बा हम हासिल करें और एक खेती हम नई एक जिसमें प्रेम है उसमें हम चलें। और जैसा कि पतरस कहता है कि ना तो मेरे पास सोना है ना ही मेरे पास चांदी है, और उठ यीशु के नाम से चल फिर। और वो चला। और मेरे प्रियो, आज फिर से यीशु हमें एक नई बुलाहट दे रहा है ताकि उस पेंटेकोस्ट के एक तजर्बे को आज फिर से हम अपनी जिंदगी में देखें और एक आनंद के साथ हम इस रास्ते पर हम चल सकें। It is restarting our journey with Jesus, and as a family we will conclude singing a Hindi song, Yehovah Ire Mera Tu Dada, Tu Muche Kafi Hai. Now that's what we can say. You are enough, Jesus, to carry us through any difficult situation in life. You are enough, you are enough, you are enough. और आज यीशु के साथ फिर से एक नए सफर में चलने की जरूरत है, एक नए सफर में चलने की जरूरत है, जिसमें हम भाई विनोद विक्टर एक गाना हम फैमिली के साथ हमारे सामने गाएंगे जिसमें यहोवा यिरहे, तू हमारे लिए सब कुछ है। और आज हम भी बात को कहें कि प्रभु तू हमारे लिए काफी है, तू ही हमारे लिए काफी है, हमें और किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, तू हमारे संग है। करने वाला तेरे मार खाने से बदलना, यहोवा शम्मा तू मेरे साथ है, मेरी घड़ी पूरी करेगा, तू बस काफी है, तू बस काफी है, तू बस काफी है मुझको, तू बस काफी है, तू बस काफी है, तू बस काफी है मुझको। यहोवा एलोहिम सृष्टि करने वाला, अपने वचन से सब कुछ बनाया, यहोवा इल्योन परम प्रधान तू, तेरे समान कोई नहीं, यहोवा शालोम तू मेरी शांति, दे दो शांति तुम्हें, तू बस काफी है, तू बस काफी है, तू बस काफी है तू बस काफी है, तू बस काफी है, तू बस काफी है। Thank you, Bishop. Thank you, Vinodji. Actually, I was so moved. The kind of efforts you have put. I mean, I'm not simply talking about the sermon. Of course, it's very appropriate, timely, but also that the way you have prepared the PowerPoint. And the way, as I said earlier, that the whole family is involved. This is something is so inspiring. Haji, Padri Vijay Kumar, translate. Yes, sir. मैं बिशप साहब ये कह रहे हैं कि पहले भी आपके बारे में कई बार कहा है, विनोद के बारे में, कि उनका जो तरीका है सरमन का और पावर पॉइंट जैसे उन्होंने तैयार किया है कि ये बहुत ही टचिंग है और बहुत ही साधारण रूप से हमारे सामने इसको प्रस्तुत किया है। और ये हमारे सबके लिए
इस जो समय जिससे होकर हम गुजर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो अपने मिशन उसको फिर से ढूंढना है कि आज के दिन में, आज के संदर्भ में जो एज चर्च एक कलीसिया होने नाते कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा मिशन क्या है, हमारे प्रायोरिटीज क्या है, और खासकर जो जरूरतमंद हैं आज के हमारे परिवारों में, हमारे कलीसिया में जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, जिनको चाहिए कि हम उनको समय दें, उनका सुने, उनका देखभाल करें. I think this is something wonderful, and thank you so much once again, Vinod ji and family, and may God bless you all. Or I'm sure that in days to come will remain connected. सबका मैं धन्यवाद करता हूँ इस पूरा परिवार का. और रेवरेंड विजय कुमार, I saw a comment, someone said that it's a nice word to word ट्रांसलेशन, क्योंकि रेवरेंड विनोद तो हिंदी समझते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो उसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो उनको पता भी चल जाएगा. सो देयर वाज नो स्कोप फॉर 2 sermons to be preached simultaneously. Thank you, Padre Vijay Kumar. Welcome, sir. Thank you for the opportunity, and it is great to listen from Vinod Achan always. Yes. Okay, so we'll now इस कन्विक्शन के साथ कि खुदा जो है हमारा साथ है और उस खुदा पर हम ईमान रखते हैं जो कि हमें बचा सकता है और बचाएगा. तो let us all join in affirming our faith in the words of the Apostles' Creed. Reverend Parvez Egbert जो कि प्रेस्बिटेरियन इंचार्ज डेलाउसी, वो हमारी अगुवाई करेंगे. आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन बोले. मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ. मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ. वह पवित्र आत्मा की समर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे. उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा. वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृत्यु के लोक में उतरे. तीसरे दिन वह जी उठे और वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए. वह जीवितों और मृतकों के न्याय करने को फिर आएंगे. मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सरलों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ. आमीन. सबको जय मसीह. आमीन. We'll have some announcements now. फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वर्शिप में. एक्चुअली इन द डायोसिस इन पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर अभी तक जो है चर्च असेंबली इज नॉट पॉसिबल. आई मीन द लिमिट इज 5 persons, और इसलिए ये एक तो मजबूरी है ही, पर परिस्थिति भी गंभीर है. जिसकी कल अमृतसर में 43 न्यू केसेस आए और काफी लोग संक्रमित हो रहे हैं. तो ये एक गंभीर स्थिति है जिसमें कि हमें ऑल द प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा, अपने परिवार के लोगों को बचाना पड़ेगा. वी नीड टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस and should not really neglect our own health and hygiene, and therefore will be protecting others also. मैं खासकर कुछ जो डायसिस के बाहर के एरिया से आज जुड़े हुए हैं मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ. रूना एंड एंजल फ्रॉम दिल्ली, रेवरेंड डॉक्टर पीसी गायन, मिसेस दीप्ति रानी गायन फ्रॉम श्रीरामपुर कलकत्ता, Sushmita Behera, Bishop Chandulal ji, our former bishop and moderator, and Bishop Rathod,
जो कि कंटिन्यूअसली हमारे साथ वर्शिप में ज्वाइन करते हैं, और स्पेशली हैज थैंक्ड फॉर द रिकवर फॉर द प्रेयर्स, जिन्होंने दुआ की, और उनकी मिसेज जो कि COVID-19 पॉजिटिव थी, शी इज आउट ऑफ द हॉस्पिटल एंड हैज almost regained her strength. Mrs. Rita Wilson, again, member of our diocese in Delhi. My elder brother, Reverend T.K. Samantray and Pravarani Samantray from Odisha, Fulbani. My sister Usha Rani from both. Savita and Rameswaran is from MP. And from Australia, of course, Reverend Dr. David Reichard and Dr. Lena. Architect Andrew Solomon, the Secretary of the Partnership Committee, and Reverend Catherine, his wife, and also a presbyter, Reverend Dr. David, Reverend Vinod Victor and family, and we have some more people also. Yes, I think I have. If I have forgotten anyone, please forgive me. क्योंकि ये चलते चलते जो नाम हमारे कम्युनिकेशन टीम के मेंबर्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वो कागज में लेके मुझे देते हैं, एंड फिर मैं बोल पाता हूँ. There have been prayer requests from Reverend Parvez Egbert, daughters passed class 10 with good marks. प्रभु का धन्यवाद देना. Miss Veena Das, please pray for my daughter and my son-in-law, उनके काम के लिए. Basavi, who is my friend, she said that please pray for my brother-in-law and niece who are both sick, and my sister who is looking after them. उनके लिए हम प्रार्थना करें. Sushmita Behera, please pray for Senika, who is not physically fit. Simran, please pray for my Buaji, who is not well. So apart from this, we'll also, I want to remind you कि इंडिया में जितने चर्चेस है सब मिलकर 40 days of prayer हम कर रहे हैं, और उसका जो है every day we are every day जो है उसका जो prayer topics वो हमारे different groups में हम शेयर करते हैं, और आज भी जो prayer topic है उसके ऊपर भी प्रार्थना की जाएगी. So this started from June 27th और 7th August को ये खत्म होगा. तो ये प्लीज मैं चाहूंगा कि आप सब ये समय the 40 days of prayer में, if possible even fasting में आप ज्वाइन कीजिए. Thanksgiving. Who has given this? Yeah, there are requests for Thanksgiving. Sana in +2, daughter of Reverend Samshed, 91%, and Rachel, 10th class, daughter of Reverend Margaret, 89%. तो इन बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे. ये जो भी हमारा वर्शिप हो रही है, द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस हम जो है YouTube में डालते हैं, और आप जो डायसिस ऑफ अमृतसर का YouTube चैनल है उसमें आप देख सकते हैं. जो पिछले वर्शिप्स की रिकॉर्डिंग उसमें ऑलरेडी है. जो आज की रिकॉर्डिंग दैट प्रोबेबली दिस इवनिंग या टुमारो मॉर्निंग हम उसमें डाल देंगे, क्योंकि जो वर्शिप सर्विस में जो नहीं कर पा रहे हैं YouTube में वो देख सकते हैं. और ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं जो YouTube चैनल है डायसिस ऑफ अमृतसर का, सो यू कैन गो एंड सी दैट. और कोई भी फीडबैक है, आप कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है उसमें शक्ति या मार्कस या पिता
उनको इस फोन नंबर पे आप दे सकते हैं या ईमेल पे दे सकते हैं. Any suggestions you have, you can give on this. Okay, so now we'll go for intercessory prayer. Reverend Pulak Samantray, who is doing his DTS studies in Calcutta Bishop's College, he will lead us in prayer. Reverend Pulak Samantray हमें ये इंटरसेसरी प्रेयर में हमारी अगुवाई करेंगे. आइए हम प्रार्थना करेंगे. प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए. आपने अनुग्रह किया और आपकी आशीष हम सब के ऊपर होने दी. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए, जो भी ऑनलाइन फैसिलिटी आपने हम सबको दिया है कि हम सारे मिलकर दूर दूर में रहते हुए भी प्रार्थना कर सकें. इसलिए धन्यवाद देते हैं. खास करके जो प्रेयर कॉन्फ्रेंस आज हमारे सामने है उसके लिए भी दुआ करते हैं. पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सारे वॉलंटियर्स के लिए, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो कि इस कोविड के समय पर जूझ रहे हैं भिन्न भिन्न जगहों में डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ. पिता परमेश्वर, उनके साथ रहिए. खास करके जो वेंटिलेटर्स और बेड्स की जरूरत है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है. प्रभु जी, आप सारे लीडर्स को ज्ञान बुद्धि दीजिए ताकि अच्छी तरह से सब फैसिलिटी सबको मिल सके. और जो भी हमारे भारत में, सारे विश्व में जो भी इस परिस्थितियां हैं उसमें सारे लोग कामयाब हो सके मिलजुल कर. और ये दुआ हम आपके सामने करते हैं. पिता परमेश्वर, इस समय आप सबके साथ रहिए. खास करके प्रार्थना करते हैं इस समय में आपकी गॉस्पेल, आपके सुसमाचार हर एक जन के पास पहुंच सके. और इस कोविड के समय पर पूरे रूप से और सही रिलेवेंट तरीके से ये हमसे बात करें. सुसमाचार, आपकी पवित्र बाइबल, और उसके द्वारा हम सबको एनकरेजमेंट मिल सके, हम दुआ करते हैं. खास करके जिन लोगों के पास आपकी सुसमाचार पहुंच नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए भी दुआ करते हैं. प्रभु जी, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके ऊपर भी ज्ञान और बुद्धि दीजिए उनको, ताकि वो अच्छी तरह से समझ सके और बाइबल की गहराइयों को समझकर उसके ऊपर मनन करने वाले हो सके. पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस भारत देश में जो जगहों पे सिचुएशन चल रहा है प्रभु जी, खास करके बिहार, आसाम और डिफरेंट एरियाज में, आप उन सारे तमाम लोगों के साथ रहिए प्रभु जी, जो मुश्किल के समय पर है, जिनके पास घर नहीं है, खाने के लिए नहीं. पिता परमेश्वर, आप उन सब के ऊपर आपके आशीष के हाथ होने दीजिए. जो लोग वहां पर भी कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, उनके पास मदद पहुंचा रहे हैं प्रभु, उनके भी साथ रहिए पिता परमेश्वर. और जो भी रिसोर्सेस की जरूरत है एनजीओ को और गवर्नमेंट को प्रभु, सबके ऊपर आपकी आशीष हो ताकि सारे रिसोर्सेस के पास पहुंच सके. प्रार्थना करते हैं जो फार्मर्स है उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, और उन्होंने काफी अपने लाइवलीहुड खो दिया है प्रभु जी, डिप्रेशन में क्रॉप खो दिया है प्रभु जी. और इन सारे मुश्किल के हालातों में आप उनके साथ रहिए ताकि उनके जीवन में आपके आशीष को महसूस कर सके और उनके डेली लाइफ भी चलने हो सके. परमेश्वर, प्रार्थना कर सारे लोगों को इस खास करके वेस्ट बंगाल में डिफरेंट प्लेसेस में इस बदलते सीजन में डेंगू और मलेरिया की जो खतरा है प्रभु जी, इसमें भी आप सबके साथ रहिए ताकि उन सबको बचा कर रखिए, ताकि हेल्थ एक प्रॉपर हेल्थ सिस्टम में, एक प्रॉपर सैनिटेशन में सब लोग रह सके और लोगों के जीवन में आपके आशीष को महसूस भी कर सके. प्यारे पिता परमेश्वर, फिर से हम दुआ करते हैं हमारे देश की तमाम सोल्जर्स के लिए जो कि बॉर्डर्स में रहकर सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. उनके साथ भी रहिए, उनको हिम्मत और हौसला दीजिए ताकि देश की रक्षा करने वाले हो सके और उनके लिए भी जो भी चैलेंजेस है और उसको भी ओवरकम करने वाले हो सके. इसलिए उनको भी आप सही रूप से आप गाइड कीजिए. प्रार्थना करते हैं जो भी पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट आज हमारे इस संडे वर्शिप में आया है, खास करके रेवरेंड परवेश उनके बेटी के लिए, और आपने उनको मदद किया 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में पास होने में सहायता मदद की, इसलिए धन्यवाद करते हैं. परमेश्वर, सना और रेचल के लिए भी धन्यवाद देते हैं. आपने उनको अच्छे ज्ञान बुद्धि दी और
सारी फैसिलिटीज भी प्रदान की, इसलिए धन्यवाद देते हैं ताकि वो मेरिट में अच्छे नंबर में गुड मार्क्स में पास हो पाए 12th और 10th में। प्रभु जी आप उनके साथ भी रहिए, आने वाले फ्यूचर में जो भी वो करना चाहते हैं प्रभु जी उनके कैरियर आप बनाइए प्रभु जी, ताकि वो आपके साथ रहकर भी और इस सांसारिक ज्ञान में बढ़ सके और अपने जीवन में, अपने लाइफ में उनके जो फोकस है उसमें वो अचीव कर सके। और सिस्टर बीना दास के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, उन्होंने जो प्रेयर रिक्वेस्ट की है अपने बेटी डॉटर के लिए और सन इन लॉ के लिए प्रभु जी, उनके कार्य में भी आप उनको सहायता मदद दीजिए और तरक्की प्रदान कीजिए। बस आप ही के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके ब्रदर इन लॉ के लिए जो कि सिख है और उनकी नीस के लिए भी जो कि बीमार है प्रभु जी, उनके लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जी। उनके पास रहिए, उनको छूकर आप चंगाई प्रदान कीजिए, आपकी प्यार भरा हाथ उनके ऊपर होने दीजिए ताकि इस समय पर भी वो आपकी शिफा को महसूस कर सकें। प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुष्मिता बेहरा के लिए, जिन्होंने सैनिका के लिए दुआ के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु जी, और ताकि वो फिजिकली फिट रह सके, उसके ऊपर भी आपके आशीष भरा हाथ होने दीजिए। सिमरन के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, उनके बुआ जी जो कि ठीक नहीं है और उनको भी आप अपने हाथ में रखें, उनको चंगाई प्रदान कीजिए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है छोटा नागपुर डायसिस के लिए प्रभु जी, और इस डायसिस में भी जो भी परिस्थितियां चल रही है प्रभु जी, सारे परिस्थितियों में आप सहायता मदद कीजिए ताकि सारे लीडर्स को ज्ञान बुद्धि दीजिए ताकि अच्छी तरह से आपकी सेवकाई को कर सके और जो भी चैलेंजेस है, जो भी मुश्किल के समय है उसको ओवरकम भी कर सके। पिता परमेश्वर फिर से हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए और आज के पूरे समय को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू रेवरेंड पुलक। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बिशप आनंद चंदूलाल जी वो बेनेडिक्शन देंगे। आइए हम मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें। We'll say the Lord's Prayer in our own language. आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। रोज की रोटी हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। मैं रिक्वेस्ट बिशप आनंद चंदूलाल जी टू से द बेनेडिक्शन। खुदा का इतने नाम जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा अपने बरकत से हमेशा रोशन करते रहे और हमें ताकत दे कि हम हमेशा अपनी जिंदगी में तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से बने रहे, आमीन। आमीन। थैंक यू बिशप साहब। फिर से सबको जय मसीह की। एंड यस नीरजा प्रसाद जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एंड आई कुड सी मिस्टर जेरी योना एंड गीतू योना, बाकी या माय फ्रेंड बासवी इतू, रेवरेंड पूनम फ्रॉम दिल्ली, आप सबका एंड वेल्स, प्लीज फॉरगिव मी इफ आई हैव नॉट टेकन योर नेम, वी आर द सेम फैमिली। Next week again with a lot of expectation. May God bless you all throughout this coming week, protect you from all danger, not only you, your family members, your friends, and help us to enjoy life in its fullness. Thank you and God bless you.